جناب حضرت مولانا کریم الصبا صاحب جو بجلور کے سرزمین سے ہم سب کے مابین پہنچنے والے تھے، حضرت والا پہنچ چکے ہیں۔ زوردار نعرہ سے حضرت والا کا استقبال کیجیے اور نعرے کے ساتھ میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں، زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ آواز میں دم نہیں، نعرہ تکبیر، ابھی بھی نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مولانا کریم الصبا صاحب زندہ باد، مولانا کریم الصبا صاحب، مولانا کریم الصبا صاحب، مولانا کریم الصبا صاحب، حضرت صاحب شیخ الاسلام، علماء دیوبند، علماء دیوبند، اسی طریقے سے ہم سب کے مابین مہمان خصوصی کے طور پر راجستھان کی سرزمین سے ہمارے پنڈال میں ہمارے سامنے سجے ہوئے اسٹیج پر سلام رحمان والے تھے، ہاں وہ بھی آن پہنچے تھے۔ میرے بھائی ابھی قاری صاحب کا فون آیا، انہوں نے بتایا کہ وہ راجستھان کی سرزمین سے رامپور پہنچے، رامپور سے اڈے پر پہنچے اور آپ کے پرانے گاؤں میں وہ پہنچ چکے ہیں۔ زوردار نعرے کے ساتھ ان کا بھی استقبال کیجیے اور زوردار نعرہ لگائیں، میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں، جناب حاجی مختار احمد زندہ باد، جناب حاجی مختار احمد، جناب حاجی مختار احمد، جناب حاجی مختار احمد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پردیش ادھیکش جمعیت علماء راجستھان زندہ باد، پردیش ادھیکش جمعیت علماء راجستھان زندہ باد، جناب حاجی مختار احمد زندہ باد۔ ہم سب کے مابین یہ علماء کے مہمان جو پہنچنے والے تھے، جن کا ہمیں شدید انتظار تھا، ہاں وہ پہنچ چکے ہیں۔ میری بات کو آپ نے غور سے سنا، میری بات کو، میرے اعلان کو آپ نے غور سے سنا، اپنے دل میں بٹھایا، آپ نے قابل مبارکباد دی، ہماری جناب عدالت کو لبیک کہا۔ ایک بندہ جو خالی کھڑا ہوا تھا آج میری آنکھوں کے سامنے ان لمحوں میں میری آنکھوں کے سامنے یہی بندہ کچا کچ مر چکا ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ بچے جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ آگے ناؤ کا انتظام ہے، یہاں آ کر کے بیٹھ جائے۔ ہمارے مہمان بیٹھے رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ میزبان ہیں، مہمانوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، ان کا اجر آپ کے ذمہ ہے۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بڑے دوستوں سے یہ درخواست ہے اپنے برابر میں، اپنی موجودگی میں، اپنے برابر والی کرسی پر جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے آگے سامنے آ کے بیٹھ جائیں۔ ایک بار اور زوردار تالیوں سے میری آواز کے ساتھ، زوردار نعروں سے میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں اور زوردار نعروں سے استقبال کیجیے جناب حاجی رخسار احمد صاحب کا۔ آواز لگائیں، جناب حاجی رخسار احمد زندہ باد، آواز، جناب حاجی رخسار احمد، جناب حاجی رخسار احمد، سوشل ویلفیئر سوسائٹی کرولی۔ لگا دی زوردار نعروں سے استقبال کیجیے حاجی جی راجستھان کی سرزمین سے تشریف فرما ہے، تشریف لائے ہیں، خاص طور سے ہمارے اسی پروگرام میں آئے ہیں۔ راجستھان کہاں ہے آپ کا، یہ روڈ کی شہر کہاں ہے آپ کا، یہ کہانا کہاں ہے۔ ذمہ داری بنتی ہے آواز نکالنے کی، ذمہ داری بنتی ہے استقبال کرنے کی، تو زوردار آواز لگائے، نعرہ تکبیر بلند کرے، آواز لگائے، میری آواز کے ساتھ آواز ملائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جناب حاجی مختار احمد، جناب حاجی مختار احمد، جمعیت علماء راجستھان زندہ باد، زوردار زوردار، پردیش ادھیکش جمعیت علماء راجستھان زندہ باد، جناب حاجی مختار احمد زندہ باد، جناب حاجی مختار احمد زندہ باد، مولانا کریم الصبا صاحب زندہ باد، مولانا کریم الصبا صاحب، مولانا کریم الصبا صاحب، مولانا کریم الصبا صاحب، علماء دیوبند، علماء دیوبند، جناب حاجی رخسار احمد، جناب حاجی رخسار احمد، جناب حاجی رخسار احمد، سوشل ویلفیئر سوسائٹی کرولی زندہ باد، زوردار تالی۔ بہت اچھا ماشاء اللہ۔ اب بیٹھ جائے سبھی نوجوان ساتھیوں سے درخواست ہے، میں نے بتایا تھا کہ آپ سب کا بیٹھنا ضروری ہے۔
इन उलमा का अदब अगर हो सकता है तो बैठने से हो सकता है। मौलाना कलीमुज़्ज़मान साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। हज़रत कारी अब्दुल वालिद साहब गुलदस्ता देकर हज़रत वाला का इस्तेमाल कर रहे हैं। जनाब हज़रत मौलाना कलीमुज़्ज़मान साहब आप भी मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाए, जोरदार नारे से इस्तेमाल कीजिए। मौलाना कलीमुज़्ज़मान साहब, मौलाना कलीमुज़्ज़मान साहब, मौलाना कलीमुज़्ज़मान साहब, सदर जमीयत उलमा बिजनौर, सदर जमीयत उलमा बिजनौर, सदर जमीयत उलमा बिजनौर। माशाअल्लाह बहुत अच्छे आपने अपनी मोहब्बतों का सबूत दिया, बेदारी का सबूत दिया। आप सब हज़रात काबिल मुबारकबाद है। इसी तरह से हम सब के माबैन जनाब शमीम अहमद साहब, जनाब शमीम अहमद साहब ये हम सब के मेहमान खुसूसी है, इसलिए उनका इस्तेमाल हम सब के लिए जरूरी है। एक मरतबा फिर आवाज मिलाएं, जोरदार नारा तकबीर बुलंद कीजिए। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर। जनाब हाजी शमीम अहमद, जनाब हाजी शमीम अहमद, हाजी शमीम अहमद, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, बहुत खूब। नौजवान साथियों ने, सुहाने वालों ने ये बताया है कि हाँ सुहाने वाले वो नौजवान हैं कि जिनकी तारीफ आप लोगों के सामने करते हैं। ऐसा नहीं है कि झूठी तारीफ हो, आपने मुझे सच बताया था, आपने मेरी इस बात की दलील जोरदार नारे तकबीर बुलंद करके दे दी है। मेहमान आपसे खुश हैं, आप सब हमसे खुश हैं, इसलिए एक और दरखास्त है, बस नीचे बैठ जाएं, क्योंकि तुम जहाँ भी खड़े हैं वहीं बैठ जाएं। आपने मोहब्बतों का सबूत दिया, कहीं ऐसा ना हो मोहब्बतें ये नफरतों में तब्दील हो जाए, ऐसा ना करना। अजीज दोस्तों दरखास्त है, नीचे बैठ जाएं, जहाँ भी कहीं आपको जगह मिले। ये नौजवान साथी जो रास्तों में खड़े हुए हैं, अजीज दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि ये उलमा की मेहमानों की बेइज्जती हुआ करती है, बेएहतरामी हुआ करती है। इनकी शान में हमें गुस्ताखी नहीं करनी, बल्कि इनकी शान को बढ़ाना है, इनका अदब करना है, इनका एहतराम करना है। मैंने अभी एक शेर पढ़ा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, राह रो आते गए बार बार बनता गया। हाँ जब मैं इस स्टेज पर आकर के खड़ा हुआ, मगरिब के बाद आकर के खड़ा हुआ, ये पंडाल मुझे खाली नजर आ रहा था। डर ये लग रहा था कि हमारे मेहमान न पहुंच जाए, हमारे मेहमान मेजबाना से पहले ना जाए। लेकिन आप लोग तो कहाने वाले हैं, मैं भूल गया था कि आप लोगों के दिल में उलमा का अदब है, आप लोगों के दिल में उलमा का एहतराम है। आपने मेरे इतना से दावत को कबूल किया, करते हुए अपने घरों को छोड़ा, अपने महल्ला को छोड़ा, अपने रास्तों को छोड़ा, अपनी बातों में मशगूल न हुए। फौरन ही मेरी इतना से दावत कर और मदरसे वालों की मोहब्बत में आज गुजरात के इस गाँव के नौजवान आलिम दीन जनाब हजरत कारी अब्दुल वाजिद साहब काशफी मोहतमिम मदरसा मरकज सईदुल इस्लाम, आपने इस नौजवान का साथ दिया, इस नौजवान की शाना बशाना चले। और ये नौजवान कि जो मोहतमिम की शक्ल मदरसे में रखता है, ये नौजवान शाना बशाना रहकर आप लोगों ने इसका साथ दिया, इन्होंने आपका साथ दिया, इन्होंने मदरसे को बढ़ाया, आप लोगों ने ताउन किया, अल्लाह का फजल हुआ। हाँ वही मदरसा कि जो तीन की शक्ल इख्तियार किए हुए था, आज तामीरी शक्ल में आपके सामने मौजूद है। आप लोगों का बेहद मशकूर ममनून है। और तमाम मदरसे वालों की जानिब से आपका शुक्रिया अदा कर देना कि मुनासिब समझता हूँ। अकेला किसी को मीड ताकीर के जिस प्रोग्राम का आपको शदीद इंतजार था, जिस मेहमान का आपको शदीद इंतजार था, जिस घड़ी का आपको शदीद इंतजार था, वो घड़ी भी आन पहुंची है, वो मेहमान भी आन पहुंचे हैं। हम सबके मेहमान, हम सबके माबैन वो उलमा जो राजस्थान से मेहमान खुसूसी के तौर पर हम सबके माबैन तशरीफ लाए जनाब हाजी रुखसार अहमद साहब। अजीज दोस्तों आपको बताओ कि हाजी रुखसार अहमद कौन शख्सियत है, किस शख्सियत की बात है। हाँ ये वही हाजी रुखसार अहमद है जो अध्यक्ष सोशल वेलफेयर सोसाइटी करौली है और प्रदेश का अध्यक्ष है जमीयत उलमा राजस्थान के। आप सबकी मोहब्बतों में ये न समझना कि कहीं इधर उधर आ रहे होंगे, यहाँ भी आ गए नहीं। हमारी इतना दावत को राजस्थान में इन्होंने कबूल किया, राजस्थान से लेकर रुड़की शहर में अगर वो पहुंचे हैं तो इसी इजलास में, अगर वो पहुंचे हैं आपकी मोहब्बत में, इसी गांव में। हाँ राजस्थान की सरजमीन से यहाँ आने का मकसद यही इजलास था, राजस्थान की सरजमीन से चलने का मकसद, सफर करने का मकसद यही मदरसा था। तो इस मदरसे का आप लोगों को बता दूं कहाँ फैज है, इसी मदरसे का हिंदुस्तान के कोने कोने में फैज पहुंच रहा है। आपको बताऊं कि हाँ इस मदरसे की कहाँ तक शोहरत है। और इस दोस्तों राजस्थान कहाँ, आपका रुड़की शहर कहाँ,
मदरसे का वो टंका बज रहा है, आपके इस मदरसे की वो शोहरत हो रही है। क्यों? आपने हमारा साथ दिया, हमने आपका साथ दिया, आप लोग हमारे साथ मिले, हम आपके साथ मिले। वो कहा जाता है ये गुल्लाही अल जमाअत, जमात पर अल्लाह का हाथ होता है, जमात के साथ अल्लाह की मदद होती है। और जब अल्लाह की मदद आ जाए तो कोई आड़ नहीं बन सकता, कोई दीवार नहीं बन सकता, हाँ कोई नहीं रोक सकता। वो तो इज्जू मन तशा, वो तो जिल्लु मन तशा, इज्जत भी वही देता है, जिल्लत भी वही देता है। जिसे चाहता है इज्जत से नवाजता है, जिसे चाहता है जिल्लत से नवाजता है। अजीज दोस्तों, आपका ये मदरसा तरक्की की तरफ गामजन है। वो राजस्थान कहाँ, हिंदुस्तान का कोना कहाँ, आपका ये बुहाना कहाँ, आपका ये रुकनी शहर कहाँ, और आपका ये मदरसा कहाँ। अगर इसकी शोहरत हुई, अगर ये मेहमानों की आमद हुई, अगर इन मेहमानों ने हमारी दावत को कबूल किया, मौलाना कलीम उस्तामा साहब जो बिजनौर की सरजमीन से तशरीफ लाए, कौन है? इसकी शख्सियत का नाम है, इस शख्सियत का नाम है मौलाना कलीम उस्तामा साहब जो बिजनौर की सरजमीन से तशरीफ लाए। सदर जमीयत उलमा बिजनौर है, हाँ दोनों जमीयत से ताल्लुक रखते हैं। हम सब के लिए काबिल सादत बात है, हम सब के लिए खुशकिस्मती की बात है, हम सब के लिए खुश नसीबी की बात है। आप लोग भी काबिल मुबारकबाद है। उलमा का अदब आपने अपने जहन में रखा, उलमा का एहतराम किया, और बिना किसी तमहीर ताखीर के हमारा ये प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ चाहता है। आगाज 10 में मैंने अर्ज कर दिया था कि जो भी प्रोग्राम सजाया जाए उसका ताल्लुक अल्लाह के नबी से जोड़ा जाए, अल्लाह से जोड़ा जाए और इस्लाम से जोड़ा जाए, शरीयत से जोड़ा जाए। तो महफिलों का जो आगाज हुआ करता है तो सबसे पहले जिस जात की तारीफ की जाती है तो वो अल्लाह की जात है, जिसने हम सबको पैदा किया, दुनिया को पैदा किया, नबातात को पैदा किया, जमादात को पैदा किया। तो क्यों ना हम अल्लाह के उस कुरान से अपने महफिल का आगाज करें कि जिसने सिर्फ 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फुसाहा, बुलगा, उदबा हैरान असूस रह गए। इसकी आयतों को सुनकर पत्थर मिलवा, पत्थर लिया के उश्कबारी करने पर मजबूर हो गई। तो लीजिए कुरान की तिलावत से इस महफिल का आगाज करते हैं। और मेरे इंतखाब नजर मेरे रफीक महतरम आपके इस मदरसे के साबिक मुदर्रिस और इरफान उलूम रामपुर की सरजमीन से तशरीफ लाने वाले, शोबा हिफ्ज़ पढ़ाने वाले जनाब कारी मोहम्मद रब्बान साहब कासमी दावत बरकातुहुल आलिया हज़रत वाला को बड़े एहतराम के साथ दरख्वास्त कर देना चाहता हूँ। हज़रत वाला कुर्सी पर जलवा फरोज हो, माइक पर जलवा फरोज हो और हमारी इस महफिल का कुरान की तिलावत से आगाज हो, कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का। इस रोड से पा जाए हम रास्ता मिल का जनाब कारी साहब माइक।